اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویحرم المقام فی بلد الشرک لمن لا یتمکن من اظہار شعائر الاسلام من الاذان والصلاۃ والصوم وغیرہا۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کل سے ہم نے کتاب جہاد کو شروع کیا ہے اور کتاب جہاد کی اقسام پڑھی تھیں اور عرض کیا تھا کہ اس کتاب میں بے شماری زیادہ تر جہاد ابتدائی کے بارے میں ہے۔ آج ہم اسی کتاب الجہاد میں ایک بحث جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ بلد شرک میں اقامت کرنا اور رہنا حرام ہے۔ بلد شرک میں رہنا، گھر بنانا، اقامت کرنا حرام ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اسلام کے جو شعائر ہیں ان کا اظہار کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسلام کے شاعر کیا ہیں؟ اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یا ان کے علاوہ جو ہیں جو شخص اسلام کے شعائر کا اظہار کرنے پر قادر نہیں ہے اس کے لیے بلد شرک میں اقامت کرنا اور رہنا حرام ہے۔ دوبارہ سنو بھائی، مشرکوں کے شہر میں مسلمانوں کا رہنا جب وہ اپنے شعائر اسلامی کا اظہار ہی نہیں کر سکتے، نہ اپنی اذان، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ ان کو کرنے ہی نہیں دیتے مشرک لوگ، وہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ وہاں ان کا مشرکوں کے شہر میں، ملک میں رہنا حرام ہے۔ جب مسلمان اپنے اسلام کے شاعر کا اظہار نہیں کر سکتے تو ان کا مشرکوں کے شہروں میں رہنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کس کا رہنا؟ اس کا جو اپنے اسلام کے شاعر کا اظہار نہ کر سکے۔ قید لگائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی مشرکوں کے شہر میں رہے لیکن اس کے پاس اتنی قدرت ہے، وہ نماز روزہ اپنا اسلام کے مطابق انجام دے سکتا ہے، قادر ہے، یا اس کا ادھر رشتہ دار اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ آرام سے جناب علی اپنے اسلام کی جو شاعر ہیں ان کا اظہار کر سکتا ہے، قادر ہے، ممکن ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے پھر وہاں رہنا حرام نہیں ہے۔ بات توجہ کی آپ نے؟ کس کے لیے بلد شرک میں رہنا حرام ہے؟ اس شخص کے لیے رہنا حرام ہے جو اسلام کے شاعر کا اظہار کرنے پر قادر نہ ہو، اس کے لیے حرام ہے۔ بلد شرک میں اس کے لیے رہنا حرام ہے جو بندہ اظہار نہیں کر سکتا، جو بندہ اسلام کے شاعر کا اظہار نہیں کر سکتا نا، اس کے لیے یہ حرام ہے۔ اس کے لیے میرے عزیزو بلد شرک میں ٹھہرنا حرام ہے۔ لیکن وہ آدمی جو قادر ہے مشرکوں کے شہر میں رہے لیکن اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ جو اس کی ہے اسلام کے جو شاعر ہیں ان کا اگر وہ اظہار کر سکتا ہے تو پھر جو ہے رہنا حرام نہیں ہے۔ بات میری پہنچی؟ کس کا رہنا حرام ہے؟ اس شخص کا رہنا حرام ہے مشرک لوگوں کے پاس شرک کے شہر میں جو اپنے اسلام کے شاعر کا اظہار کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی قادر ہے اس شرک کے بلد میں بھی اپنے اظہار اسلام کے شاعر جو ہیں اس کے کر سکتا ہے تو اس کا رکنا وہاں حرام نہیں ہے۔ پھر بھی بہرحال کہتے ہیں کہ اگر اسلام کہ شاعر وہاں اظہار کر سکتا ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے پھر بھی وہاں نہ رہے، کیونکہ اس کے رہنے سے ان کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہاں نہ رہے، مستحب ہے وہاں پھر بھی چھوڑ دے، اگرچہ قادر بھی ہے پھر بھی وہاں نہ رہے۔ توجہ،
वयहरुमुल मुकाम फी बलदिल शिरक लिमन ला यतमक्कन मिन इजहार शाइरिल इस्लाम। यहरुमुल मुकाम, इकामत करना हराम है, फी बलद शिरक, शिरक के बलद में इकामत हराम है। किसके लिए? लिमन ला यतमक्कन मिन इजहार शाइरिल इस्लाम, उसके लिए जो इजहार शायर इस्लाम पर कादिर नहीं है। कौन से शायर इस्लाम? मिनल अज़ान व सलाते व सौम, अज़ान, नमाज, रोज़ा वगैरह, ये इनके अलावा वसुम यज़ालिका शियारन, इनको शियार कहा गया है। क्यों? लिअन्नहु अलामतुन अलैहि, क्योंकि ये इस्लाम की अलामत हैं। औ मिन शियार अल्लज़ी हुवा सौब अल मुलासिक लिल बदन, या ये शियार यानी शियार वो होता है जो वो कपड़ा है, हुवा सौब वो कपड़ा है, अल मुलासिक लिल बदन है जो बदन के साथ क्या है, मिला हुआ होता है, चिमटा हुआ होता है। शियार उसको कहते हैं कि ये वो कपड़ा है, अल मुलासिक लिल बदन, जो बदन के साथ चिमटा हुआ है। तो फिर यहां क्यों कह रहे हैं फस्तुईर लिल अहकाम अल्लाह से कते अल्लाज़िमते लिद्दीन, तो ये किनाया लाया गया है अहकाम जो क्या है लाहिक अल्लाह का, तो फिर ये किनाया लाया गया है, शायर किनाया लाया गया है अहकाम के लिए जो दीन के लिए क्या है लाजिम हैं। अहकाम जो दीन के लिए लाजिम है उनके साथ फिर ये किनाया लाया गया है। औ मिन शायरे, या शियार अल्लज़ी हुवा सौब वो कपड़ा है, अल मुलासिक लिल बदन जो बदन से चिमटा रहता है। फस्तुवीरा, बस ये किनाया लाया गया है किससे? लिल अहकाम, अहकाम के लिए, अल्लाह से कते लाज़िमत लिद्दीन जो दीन के लिए लाजमी तौर पर होते हैं। ठीक है। वह तरज़ बिग़ैरिल मुतमक्किन मिम्मन युमकिनुहु, वह तरज़ वो जो मुसन्निफ ने कहा लिमन ला यतमक्कन, उसके लिए रहना हराम है जो कादिर नहीं है इजहार शायर इस्लाम पर। ये क्यों कैद लगाई? वह तरज़ा बिग़ैरिही, वह तरज़ा दूरी की है, बिग़ैरिल मुतमक्किन जो कादिर नहीं है उस कैद से दूरी की है, मिम्मन युमकिनुहु इकामतुहा, जिसके लिए मुमकिन हो इकामतुहा, शायर का इकामा करना मुमकिन हो। क्यों? लिकुव्वतिन, कुव्वत है इसके पास, और अशीरतिन या कबीला है, तमनअहु जो इसकी हिमायत करता है। फला तजिब अलैहिल हिजरतु, बस उस शख्स पर हिजरत करना वाजिब नहीं है, उस पर हिजरत करना वाजिब नहीं है। नाम तुस्तहब्बु लिअन ला यकसुरा सवादहुम, जी हाँ मुस्तहब है, लिअन ला यकसुरा सवादहुम, ताकि काफरों की आबादी ज़्यादा ना हो जाए। व इन्नमा यहरुमुल मकाम माल कुदरते अलैहा, मुकाम ठहरना हराम है, माल कुदरते अलैहा, आगा मकाम ठहरना हराम है, माल कुदरते अलैहा, जब उसकी इस हिजरत करने पर कुदरत भी हो। इन्नमा यहरुमुल मकाम हो, मकाम ठहरना हराम है कब? माल कुदरत अलैहा, जब उस पर कुदरत भी हो, कुदरत भी हो हिजरत पर। फलौ ताज़रत लिमरज़िन व फ़क्रिन व नहवी फला हरजा, अगर वो मुतअज़्ज़िर हो इस हरकत करने पर, मरीज है और फ़क्रिन या फ़कीर है, व नहवी या फ़क्र की मानद, फला हरजा तो कोई हर्ज नहीं है। तो फिर कोई हर्ज नहीं है, ठहरे, फिर मजबूरी है, मजबूरी है, बाहर जा ही नहीं सकता ये तो। ठीक है ना। ठहरना जो हराम है कादिर पर, ठीक है ना, कादिर पर हराम है। इन्नमा यहरुमुल मकाम माल कुदरत अलैहा, ठीक है, कि मुकाम और रुकना हराम है जब कुदरत हो अलैहा, उस जाने पर, हिजरत करने पर। फलौ ताज़रत, अगर मुतअज़्ज़िर हो, मुश्किल हो, ले मरज़िन, मरज़ की वजह से, और फ़क्रिन व नहवी या उसकी मानद, फला रजा फला इश्काला, कोई हर्ज नहीं है, फिर वहाँ रुक सकता है। वअल्हक़ल मुसन्निफ़ु फ़ीमा नुक़िलान बिबिलाद शिर्क बिलादल ख़िलाफ़,
मुसन्निफ ने मुल्हक किया है फीमा नोकिलान, जो मुसन्निफ से नकल हुआ है, मुसन्निफ ने मुल्हक किया किसको, बे बिलाद शिर्क बिलादल खिलाफ, बिलाद शिर्क के साथ बिलाद खिलाफ को भी मुल्हक किया है। बिलाद खिलाफ यानी वो जो आल तसन्नुन के मतलब है शायर हैं, आल तसन्नुन के जो हमारे हैं, ठीक है, वहाँ भी अगर किसी को जो है वहाँ अपनी मतलब है नमाज रोज़ा पढ़ने की कोई जो अपने मुताबिक अंजाम देना चाहता है, शिया अपने मुताबिक, ठीक है, वहाँ अंजाम ना देने दें तो उसका भी यही है। तो फिर वहाँ ऐसे शहर में जो हमारे भाई आले सुन्नत का है, जैसे तालिबान का मसलन उधर कोई है जो शियों को देख ही नहीं पसंद करते, तो वहाँ से निकल जाए, वहाँ इसका रुकना मुखालफों के शहर में हराम है। वाला कल मुसन्निफ फीमा नोकिलान व बिलाद शिर्क बिलादल खिलाफ, मुसन्निफ ने जो उस मुसन्निफ से नकल हुआ बिलाद शिर्क के साथ बिलाद खिलाफ को भी बिलाद शिर्क के साथ मुल्हक किया है। अल्लती ला यतमक्कनु फीहा अल-मुमिन मिन इकामत शाइरिल ईमान, अल्लती ला यतमक्कनु फीहा, जिन बिलाद खिलाफ में मोमिन कादिर नहीं है मिन इकामत शाइरिल ईमान, के वो अपने शाइर ईमान को इकामत करे तो वो वहाँ रुकेगा तो उसका ठहरना हराम होगा। मा इम्कान इंतकाल इला बलदिन यतमक्कनु फीहि मिनहा, जबकि मुमकिन भी है इंतकाल इला बलदिन, उस मोमिन के लिए शहर की तरफ मुंतकिल होना मुमकिन भी है, यतमक्कनु फीहि मिनहा, उस बलद में मुमकिन भी है, मिनहा इकामत शायर करना, ठीक है, मुमकिन है। भाई तवज्जो की, मा इम्कान इंतकाल इला बलद, जबकि इस मोमिन के लिए दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल होना मुमकिन भी है। कौन सा दूसरा शहर, या तमक्कनु फीहि मिनहा, कि जिस बलद में वो इकामत शायर करना उसके लिए मुमकिन है, तो फिर वो सुन्नियों वाले शहर छोड़कर दूसरे शहरों में चला जाए। तवज्जो फरमाना मेरे अजीज़ों, ये जो हम बात कर रहे थे जिहाद इब्तिदाई की, जिसमें खुद मुसलमान काफिरों से जंग करते हैं ताकि उनको इस्लाम की तरफ बुलाएं, ठीक है, इसमें सवाल, क्या वालिदैन बेटे को जिहाद करने से रोक सकते हैं इस जिहाद इब्तिदाई से? क्या सवाल है, क्या वालिदैन अपने बेटे को जिहाद इब्तिदाई से रोक सकते हैं जबकि उस बच्चे पर मुय्यन नहीं है, जिहाद मुय्यन नहीं है, यानी इमाम ने उसको खसूसी आमर नहीं किया, उस पर इमाम ने आमर करके मुय्यन नहीं किया। सवाल, क्या वालिदैन को हक हासिल है जिहाद इब्तिदाई से बच्चे को रोक सकते हैं? फरमाते हैं जी, जिहाद इब्तिदाई से वालिदैन अगर चाहें तो बेटे को मना कर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि उस पर बच्चे पर जिहाद मुय्यन ना हो। कैसे कि इमाम ने कहा तूने खसूसी जाना है, जब तक मुय्यन नहीं है वालिदैन को हक हासिल है, वो उसको मना कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं। नंबर 2, कर्ज खा, जो कर्ज लेने वाला है वो मकरूज को मना कर सकता है जिहाद करने से, इस जिहाद इब्तिदाई से। कर्ज खा अपने मकरूज को, ठीक है, इस जिहाद इब्तिदाई से मना कर सकता है, इस शर्त के साथ कि वो मकरूज कादिर भी है और कर्ज की तारीख भी आ चुकी है, तो वो कहे कर्ज खा कि मुझे दो वरना मैं नहीं जाने देता तुम्हें जिहाद इब्तिदाई पर, ये भी उसको रोक सकता है। तवज्जो की, 2 बातें की हैं। इस जिहाद इब्तिदाई में वालिदैन भी अपने बच्चे को मना कर सकते हैं और कर्ज खा भी मकरूज को, जब उस कर्जे की मुद्दत पहुंच चुकी हो, आ चुकी हो, देने वाली तारीख आ गई हो, तो वो मकरूज को वो भी मना कर सकता है। कर्ज खा भी मकरूज को जिहाद इब्तिदाई से मना कर सकता है जब उसकी तारीख आ गई है, वालिद भी अपने बच्चे को मना कर सकते हैं। तवज्जो,
वलिल अबवैन मन उल वलद मिनल जिहाद बिल माना लव्वल, अबवैन के लिए कि वो बेटे को मना करें जिहाद जो बेमाना लव्वल है, जिहाद इब्तिदाई। ठीक है, वलिल अबवैन अबवैन के लिए है, यानी अबवैन को ये हक है, मन उल वलद मिनल जिहाद बिल माना लव्वल, वलद को मना करें जिहाद जो माने अव्वल है, जिहाद इब्तिदाई है। मा अदम तायीन अलैह, मा अदम तायीन अलैह, जब मुअय्यन ना हो अलैह उस बेटे पर, मुअय्यन ना हो बे अमरिल इमाम लहू, इमाम के अम्र जो लहू उसके लिए है, जिहाद के लिए है, इमाम ने उसको जिहाद का अम्र न किया हो। मा अदम तायीन अलैह, जब मुअय्यन न हुआ उस वलद पर जिहाद अम्र इमाम से, तो फिर मना कर सकता है। और बिज़ाफिल मुस्लिमीन अनिल मुकावमत बिदून ही, या मुसलमान ज़ईफ़ हैं क़याम करें बिदून ही, उसके वलद के बगैर क़याम करने से मुसलमान ज़ईफ़ हैं। इद यजिब अलैना ऐना, इस वक्त तो इस पर वाजिब ऐनी है जब मुसलमान ज़ईफ़ हैं तो। फला यतवक्कफ़ु अला इज़्निहिमा, बस इस सूरत में मौकूफ़ नहीं है इज़्निहिमा, अबवैन की इजाज़त मौकूफ़ नहीं है। जब इमाम का खसूसी अमर आ गया हो इस पर, या मुसलमान ज़ईफ़ हैं इसके बगैर हो ही नहीं सकता, तो फिर वहाँ वालिदैन की इजाज़त नहीं चलेगी, इस पर ज़रूरी होगा। फला यतवक्कफ़ु अला इज़्निहिमा, बस मौकूफ़ नहीं है इज़्निहिमा, अबवैन का इज़्न काफ़ी फिर मौकूफ़ नहीं है। फला यतवक्कफ़ु अला इज़्निहिमा, अबवैन के इज़्न पर फिर ये मौकूफ़ नहीं है। का गैरिही मिनल वाजिबातिल ऐनिया, जैसे जिहाद के अलावा जो वाजिबात ऐनिया हैं। ठीक है, वफ़ी इल्हाक़िल अजदाद बिहिमा कौलुन कवी। अब जी बात ये है कि जनाब इसके अजदाद भी हैं, वालिदैन भी हैं, अजदाद भी हैं, तो फिर क्या ये सारे इकट्ठे हों तो सबकी इजाज़त चाहिए, सारे इजाज़त दें इस बच्चे को, बाप भी है, दादा भी है, परदादा भी है मसलन, जी कहते हैं सारी इजाज़त दें। फिर वफ़ी इल्हाक़िल अजदाद बेहिमा कौलन कवी, अजदाद को भी बेहिमा अबवैन के साथ मुलाक़ करने में कौल कवी है। फ़लो इज्तमऊ तवक्कफ़ अला इज़्निल जमी, फ़लो इज्तमऊ, इज्तमऊ कौन, ये अजदाद और अबवैन अगर जमा हो जाएँ, तवक्कफ़ अला इज़्निल जमी, तो जिहाद मौकूफ़ है तमाम की इजाज़त पर। वला युश्तरतु हुर्रियतुहुमा अलल अक़वा, हुर्रियतुहुमा इस माँ बाप का आज़ाद होना बिना बर कौल अक़वा शर्त नहीं है। वला युश्तरतु हुर्रियतुहुमा अलल अक़वा, माँ बाप का हुर होना बिना बर कौल अक़वा शर्त नहीं है, शर्त नहीं है। वफ़ी इश्तिरात इस्लाम हेमा कौलान, वफ़ी इश्तिरात इस्लाम हेमा, हेमा अबवैन के इस्लाम के शर्त होने में दो कौल हैं। बाद कहते हैं कि वो इस्लाम होना शर्त है, और बाद कहते हैं कि शर्त नहीं है। वज़ाहिरुल मुसन्निफ़ अदम, ज़ाहिर मुसन्निफ़ अदम शर्त है, शर्त नहीं है मुसलमान होना। वकमा युतबरु इज़्नुहुमा फ़ी, युतबरु फ़ी साइरिल अस्फ़ार अल मुबाहत वल मंदूबत वल वाजिबत किफ़ायतन मा अदम तायीन अलैह। कमा युतबरु इज़्नुहुमा फ़ी, जिस तरह मोतबर है इज़्नुहुमा अबवैन का इज़्न मोतबर है फ़ी है जिहाद में, युतबरु फ़ी साइरिल अस्फ़ार, तो ये बाकी सफ़रों में भी मोतबर है, बाकी सफ़र जो मुबाह हैं मुस्तहब हैं, वल वाजिबा और वाजिब है किफ़ाई हैं। ठीक है, उनमें भी बाप की इजाज़त चाहिए। मा अदम तायीन अलैह, जबकि वो सफ़र मुय्यन ना हो उस शख्स पर, क्यों, ले अदम मन फ़ीहिल किफ़ाया, ठीक है, क्योंकि नहीं है जो किफ़ायत करे वो नहीं है जब, तो फिर इस पर क्या होगा, ज़रूरी होगा जाना। व मिन्हु सफ़रो ले तलब इल्म, व मिन्हु इसी सफ़र वाजिब में से सफ़र है तलब इल्म के लिए सफ़र करना। फ़इन कान वाजिबन लौ किफ़ायतन, अगर ये वाजिब नहीं हो या किफ़ाई हो, का तहसील फ़िक़्ह व मुक़द्दिमात, जैसे फ़िक़्ह की तालीम हासिल करना और मुक़द्दिमात फ़िक़्ह की।
मादम क़याम मनफी अलकिफ़ाया, जबकि वो भी नहीं है जो किफ़ायत करे, वो भी नहीं है। ठीक है, वादम इम्कान तासील फ़ी बलदिहिमा, और तासील इल्म का इम्कान भी नहीं है उन के शहरों में, वमा क़रबहु, या उनके करीब जो शहर हैं उनमें भी, मिम्मा ला युअद्दु सफ़रन अलल वज्ह अल्लज़ी यहसुलु मुसाफ़िरन, ठीक है, उसके करीब के जिसको सफ़र शुमार नहीं किया जाता इस तरह के, अल्लज़ी यहसुलु मुसाफ़िरन, के वो मुसाफिर हो, लम यतवक्कफ़ अला इज़्निहिमा, यहाँ अबवैन की इज़्न जो है उस पर ये सफ़र मौकूफ़ नहीं है। इन कान का जवाब है, इन कान वाजिबन न किफ़ायतन, पढ़ते आओ, लम यतवक्कफ़ अला इज़्निहिमा, ये जो है मौकूफ़ नहीं है अला इज़्निहिमा, अबवैन की इजाज़त पर ये सफ़र वगैरह जो करना है ये मौकूफ़ नहीं है। ठीक हो गई बात। व इल्ला तवक्कफ़ा, वरना जो है ये अबवैन की इज़्न पर मौकूफ़ है। वल मुदीनो कर्ज़ खा बिज़म्मे अव्वलिही, मुदीन वह हुआ मुस्तहिक़्क़ु दैन, वो है जो मुस्तहिक़ दैन है, यानी कर्ज़ खा, यमनउल मदयूना अल मूसिरा अल कादिरा अलल वफ़ा, यमनउल मदयूना, ठीक है, मुदीन, ठीक है, यमनउल मदयूना, ये मकरूज को मना कर सकता है, अल मूसिरा, जो सरवतमंद है, मुदीन यानी तलबकार, कर्ज खा जो मुस्तहिक के दैन है, जो मुस्तहिक के दैन है यानी कर्ज खा है, दैन का मुस्तहिक है, ये क्या कर सकता है, यमनउल मदयून, मदयून मकरूज को मना कर सकता है, अल मूसिरा, जो क्या है, मूसिरा मालदार है, मकरूज जो मालदार है, अल कादिर अलल वफ़ाए, जो कादिर है वफ़ाए दैन पर, माहुलूल, जबकि कर्ज की तारीख भी आ चुकी है, हालल खुरूज इलल जिहाद, जिहाद की तरफ खारिज होते हुए, जिहाद की तरफ जाना है, कर्ज खा कर रुको रुको मेरा कर्जा दे के जाओ वरना न जाओ। फलो कान मूसिरन औ कान दैन मुअज्जलन, अगर वो बंदा तंग दस्त है, मूसिर है, औ कान दैन मुअज्जलन, या वो दैन मुअज्जल है यानी मुद्दतदार है, अभी उसकी मुद्दत रहती है, जो कर्जा लिया था उसकी मुद्दत की अभी अदायगी का वक्त आगे जान, क्या है जान, अभी तक नहीं आया है। व इन हल्ला कबल रुजू ही, अगरचे वो मुद्दत पहुंच जाएगी कबल रुजू ही, कबल रुजू ही, उस शख्स के लौटने पे, जिहाद से वापस आने से पहले मसलन वो मुद्दत आ जाएगी आदतन, ठीक, लम यकुन लहुल मनु, कर्ज खा को मना करने का हक नहीं है, लम यकुन लहुल मनु मा एहतिमाल फिल अखीर, एहतिमाल मन है आखिरी में, कौन सा आखिरी, इन हल्ला कबल रुजू ही, दैन मुअज्जल हो और अजल पहुंच, मुद्दत पहुंच जाए उसके वापस आने से पहले, अभी नहीं है लेकिन जब उसने आना है तो मुद्दत पहले आ जानी है, इस सूरत में भी मना करने का एहतिमाल है। ठीक हो गई बात अगर जान, दोबारा मेरे ख्याल में सुन लें आप, ठीक है, ये जी, वल मुदीनो बिज़म्मे अव्वली व हुवा मुस्तहिक़्क़ु दैन, यमनउल मदयून अल मूसिर अल कादिर अलल वफ़ा माहुलूल, मदयून मुदीन कर्ज खा, यमनउल मदयून मकरूज को मना कर सकता है, वो मकरूज जो कौन है, अल मूसिर मालदार है, कादिर वफ़ा पर, माहुलूल, जबकि वो कर्ज की मुद्दत भी आ गई है देने की, हालल खुरूज इलल जिहाद, जिहाद की तरफ खारिज होने से मना कर सकता है। फलो कान मूसिरन औ कान दैन मुअज्जलन, अगर वो तंग दस्त है या दैन मुअज्जल है, मुद्दतदार है, व इन हल्ला कबल रुजू ही आदतन, अगरचे वो मुद्दत आ जाएगी कबल रुजू ही आदतन, उस शख्स मदयून के वापस आने से पहले आदतन मुद्दत आ जाएगी, फिर भी मना नहीं कर सकता। लम यकुन लहुल मनउ, ये फलो काना का जवाब है आगा जान, ठीक है, लम यकुन लहुल मनउ, तो इस कर्ज खा को मन करने का हक नहीं है, मा एहतिमाल फिल अखीर,
جبکہ احتمال من ہے فی الاخیر، آخری میں، آخری کون سا؟ جب دین معجل ہو، مدت دار ہو، اور اس کی مدت اس کے رجوع سے پہلے، پلٹنے سے پہلے ہو، تو اس آخری صورت میں منع کا احتمال ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے جان، اس کو منع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک مطلب اور ہے، وہ ہے رباط کا مطلب، رباط کے بارے میں، جس کو ہم انشاءاللہ الگ جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ رباط کیا ہے، جس کو فرمائیں گے والرباط مستحب، یہ رباط کیا ہے یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔